ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم ہر بار ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار بھی ہم ایک اہم اور بہترین موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس کی کچھ آیتوں سے اور احادیث طیبہ کے کثیر ذخائر سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی اصل ایمان ہے۔ تو اسی تعلق سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ تو آج اسی تعلق سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خدمت میں کچھ عرض کریں گے۔ تو ہمارے سامنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ مصباحی صاحب۔ آج ہم ان سے اسی معاملے میں کچھ عرض و معروض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ حضرت بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ایک حدیث کے تعلق سے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جی، حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ یہ حدیث پاک کا ایک جز ہے۔ جی۔ تو اس حوالے سے عوام میں بہت ساری گمراہیاں لوگ پھیلاتے ہیں جی۔ کہ اس حدیث کا یہ مفہوم کہ مزارات پر میلہ ٹھیلا نہ لگاؤ، اس کا کیا اصل میں یہی مفہوم ہے یا پھر اس کے برعکس کوئی اور معاملہ ہے؟ جی۔ اس کی صحیح وضاحت آپ فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حافظ صاحب، جیسا آپ نے فرمایا جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا تجعلوا قبری عیدا، جی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ولا تتخذوا قبری عیدا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے لا تجعلوا قبری عیدا۔ اس حدیث میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں اور کچھ پیچھے بھی الفاظ ہیں، لیکن آپ نے جیسا کہ اتنا ہی ٹکڑا اس حدیث کا بیان فرمایا تو میں اسی کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور کچھ بتاؤں گا کہ اصل چیز کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ذرا ملاحظہ فرمائیں جی کہ شریعت میں علماء نے، فقہا نے کچھ اصول مرتب کیے ہیں، کچھ اصول و قوانین بنائے ہیں، اور یہ خود سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیے گئے۔ جیسا کہ اصل معاملہ ہے قرآن کی تفسیر، احادیث کریمہ کا مفہوم، یہ اس کا حقیقی معنی و مراد اور مفہوم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے رائے کے طور پر قرآن کی تفسیر کرنا، احادیث کریمہ کا مفہوم بیان کرنا، یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث متواتر کے درجے میں ہے، جی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ذرا سوچیں آپ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ تو بس یہ تمہید میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ اب اس کی نظر میں آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں، ہماری قوم میں، رسول اللہ کی سمت میں، کچھ علماء سو ہیں، کچھ علماء حقانیین ہیں۔ جی بے شک۔ اور یہ علماء سو جو ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ امت کے بھولے بھالے سادہ لو صفت لوگوں کو شریعت کی حق باتوں سے، اسلام کے جو اصول ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان سے پھیر دیا جائے، ایسا معاملہ ہے۔ اور وہ اپنی طرف سے قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کیا کرتے ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا، اپنی کتابوں میں تحریف کر دی اور اپنے من سے جو دین چاہا من چاہا دین بنا لیا۔ بے شک۔ تو ایسا ہی معاملہ کچھ یہاں پر بھی ہے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ نے جیسا کہ کہا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ لا تتخذوا قبری عیدا او لا تجعلوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ عیدگاہ نہ بناؤ، رسول اللہ کی قبر پر رش نہ لگاؤ، کیونکہ عیدگاہ میں تم جاتے ہو، وہاں پہ مجمع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، رسول اللہ کی قبر پر رش نہ کرو، عیدگاہ نہ بناؤ۔ اور بعض کم بخت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے کوئی جائے تو معاذ اللہ اس نے گناہ کر دیا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ کی قبر انور کو معاذ اللہ صنم اکبر لکھا۔ تو یہ ان کی سراسر ناہنجاری ہے، اور
बदबख्ती और हद से ज्यादा बढ़ जाना है उनका, उनकी शकावत है ये। जी आप जरा सोचें कि अगर इस हदीस का माना मफहूम यही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद क्यों फरमाया, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। जी अगर इस हदीस का मफहूम यही है कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, यानी मेरी कब्र पर रश ना लगाओ, मेरी कब्र पर रश लगा कर ना आओ, तो अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद क्यों फरमाया, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। जी दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, कंजुल उम्माल की हदीस है ये भी, कि जिसे हो सके, हदीस का मफहूम ये है, जिसे हो सके मदीना तैयबा में इंतकाल करे या मक्के मुकर्रमा में इंतकाल करे, क्योंकि जो इन दोनों हरम में से कहीं इंतकाल करेगा मैं उसकी शफात करूंगा, मेरी शफात उसके लिए वाजिब होगी। जरा सोचें आप, जब अगर यही मामला है कि रसूलुल्लाह की कब्र पर रश ना लगाओ, तो फिर अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन हज फलन यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरे ज़ियारत ना की, मेरी कब्र की ज़ियारत ना की, तो उसने मेरे साथ जफा किया, बेवफाई की, उसे जुल्म किया। जरा सोचें आप, अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसने हज किया और मेरी कब्र की ज़ियारत ना की तो उसने जुल्म किया, बेवफाई की। अब अगर इस हदीस का माना मफहूम यही हो तो आप जरा सोचें, अच्छा एक मिसाल जरा सोचें आपकी, हर साल हज होता है ना, जी और दुनिया में करीब 57 ममालिक हैं, और हर मुल्क से अगर आप 1-1 लाख लोग मिसाल के तौर पर मुतय्यन कर लें कि हज के लिए जाते हैं, तब भी कितने 57 लाख अफराद हो गए ना। जी जबकि रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख लोग हज के लिए जाते हैं, जी और ये सारे के सारे लोग मदीना मुनव्वरा ज़ियारते कब्र अनवर शरीफ के लिए जाते हैं। जी तो अगर हदीस का ये माना मफहूम है कि मेरी कब्र पर रश ना लगाओ, तो फिर ये सारे लोग, तो अल्लाह के ने फरमाया कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की तो उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और अब इन्होंने कब्र की ज़ियारत की, उनके लिए शफाअत है वाजिब। दूसरी हदीस ये कह रही है कि मेरी कब्र पर ना आओ, रश ना लगाओ, तो अब दोनों हदीसों में तजाद हो गया। तुम क्या मफहूम बयान कर रहे हो? मतलब एक हदीस को बयान करने के चक्कर में दूसरी सिर्फ नहीं बल्कि कई हदीसों को छोड़ रहे हैं, और हदीस वो नहीं है बल्कि हदीस खुद की तरफ से बस सादा लोगों को दीन से मुतनफिर करना उनका मकसद है। यही मकसद है उलमाए सूक और उलमाए हक्कानीन का। अब जरा देखें इस हदीस के हवाले से कि इस हदीस का असल मफहूम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिजू कब्री ईदा और ला तजल्लू कब्री ईदा। मुहद्दिसीन किराम और शारिहीन हदीस इस हदीस की शरह बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहाँ पर ईद से मुराद क्या है। अब जरा गौर फरमाएं आप कि साल में हम ईद मनाते हैं ना, तो इसका असल माना मफहूम ये है कि साल में 2 मरतबा ईदें आती हैं, और हम साल में 2 मरतबा ईदगाह जाते हैं, उसके बाद हमें कभी ईदगाह जाने की तौफीक नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह कोई ना कोई चला जाए। तो अब देखिए असल मामला क्या है कि ईदगाह उसी तरह वीरान पड़ी रहती है, और ईदगाह में जानवर, बकरियां, ये जो पालतू जानवर हैं, ये उसमें जाके कूदते हैं और चरते हैं, और वहीं पे पेशाब वगैरह भी कर दिया करते हैं, बाज़ औक़ात बकरियां मेगनियां भी कर दिया करती हैं इस तरीके से। तो ये ईदगाह का ये हाल होता है। साल में जब ईदैन आते हैं तो फिर सफाई वगैरह करके फिर हम नमाज वहां पर अदा करते हैं। तो ऐसा मामला है। दूसरी बात, एक और चीज आप जरा गौर फरमाएं कि जब हम ईद के लिए वहां पर जाते हैं तो ईदगाह के पास लहव लईब होता है, बच्चे खेला करते हैं, ठीक है ना, लोग फरहतो खुशी के साथ जाते हैं वहां पर, नमाज के अदा करने के बाद फिर खेल कूद होता है। और आज के जमाने में तो मतलब ऐसा नहीं मामला है, लेकिन जमाने अरब जो जाहिलियत के बाद का जो अल्लाह के रसूल का जमाना था, उस जमाने के बाद ऐसा मामला था कि लोग जब ईद के लिए नमाज पढ़ने जाया करते थे तो ईद एक खुशी का दिन रहता था। आज भी वैसा है, लेकिन जमाने तहजीब बदलती है तो कुछ फर्क पड़ता है। तो उस वक्त लोग खेल कूद भी किया करते थे वहां पर, तीरंदाजी भी किया करते थे, घोड़ा भी दौड़ाया करते, जो उस वक्त के खेल थे वो सब किया करते थे, और बाकायदा बड़े लोग किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तत्तखिजू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, यानी ऐसा ना करो कि साल में सिर्फ 2 मरतबा आओ। ऐसा ना करो कि साल में तुम सिर्फ 2 मरतबा आओ। तुम जब भी मेरी कब्र पर आओगे ना उस वक्त तुम्हारे लिए ईद होगी। साल में तुम 2 मरतबा ईदगाह पर जाते हो तो तुम्हारी ईद होती है, लेकिन मेरी कब्र पर जब भी आओगे तो तुम्हारी उस वक्त ईद होगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तेरी जब की ईद होगी वही मेरी ईद होगी, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। ये लोग कहते हैं कि मतलब हमेशा देखो मदीना मदीना करते रहते हैं, मदीना जाते हैं। हदीस का गलत मफहूम बयान करना, लोगों को राय हक से मुतनफिर करना, ये इनका शेवा हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, यानी ईदगाह की तरह ना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि वहां पर बकरियां चरें इस तरीके से, और ऐसा ना हो कि तुम साल में सिर्फ 1 मरतबा आया करो। और दूसरी जगह दूसरा मतलब ये भी है कि ऐसा ना हो कि तुम आकर वहां पर लहव लईब करो,
क्योंकि मेरी बारगाह और रसूलुल्लाह की बारगाह तो वो है ना, कुरान फरमाता है वला ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ये बारगाह वो है जहां पर अपनी आवाज को भी बुलंद ना करो। ठीक है, तो आखिर है तुम ईदगाह की तरह मेरी कब्र के पास लहो भी मशगूल ना हो जाना, क्योंकि ये सूए अदब में कहीं मुब्तला ना हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल हफ्ते कर लिए जाए। तो मामला ऐसा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी उम्मत को अदब सिखाया कि ऐसा मामला करना, ईदगाह की तरह ऐसा मामला ना करना। और ऐसा क्यों फरमाया, देखिए इमाम तय्यबी फरमाते हैं, क़ाला तय्यबी नहाहुम अनिल इज्तिमाअ लहा इज्तिमाअहुम लिलईद नुज़हतन व ज़ीनतन, ये फरमाया। दूसरी वक्त मकानतिल यहूद व नसारा तफ़अलु ज़ालिका बिक़ुबूर अंबियाइहिम, कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, इमाम तय्यबी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, ठीक है ना, वो फरमाते हैं इस हदीस शरह में कि अल्लाह के रसूल ने जो मना फरमाया तो वो इसलिए कि तुम आकर मेरी कब्र पर खेल कूद और इस तरह के लहव भी मशगूल ना हो, जैसा कि यहूद नसारा किया करते थे। वो अपने अंबिया किराम की कब्रों पर साल में एक दो मरतबा आया करते थे और उसके बाद फिर वहां पर बाकायदा लहव किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने उससे मना फरमाया कि मेरी बारगाह तो वो बारगाह है कि अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि इस बारगाह में अपनी आवाज भी पस्त रखो, आवाज भी बुलंद ना हो जाए, इतना अलग मलहूज रखो, तो फिर ऐसा ना करो। और दूसरी बात ये कि छोड़ भी ना तो इस तरीके से कि मतलब ईदगाह की तरह उस पर जानवर चलने लगे, बल्कि जब भी मेरी बारगाह में आओगे ना उस वक्त तुम्हारे लिए ईद होगी। तो हदीस का मफहूम क्या है, और उलमाए सूह ने कहां से कहां पलट दिया। तो लोग सुनते हैं तो कहते हैं मामला तो बिल्कुल बरक्स हो गया, कहां से कहां। अच्छा, लोगों की ज़हनियत में भी ये फर्क आता है। अब वो कोई उनके सामने जाए, लोगों को पता नहीं कि क्या चीज असल मामला है, क्या दीन है, क्या चीज है। अब उनके सामने कोई कहता है सियाह सित्ता की हदीस है और अबू दाऊद शरीफ में हदीस मज़कूर है, सिहा की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, वहां पर ये काम ना करो वगैरह, मेला ना लगाओ, जमात और रश वगैरह ना बढ़ाओ, भीड़ वगैरह ना लगाओ। तो लोग सोचते हैं कि मतलब ऐसा मामला कैसे हो गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिहा की हदीस है। भाई मतलब लोग तुम्हें बता ही नहीं रहे, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि ये बदबख्त जो इंसानी शक्ल में इब्लीस की औलाद बन के निकला हुआ है, वो शख्स यहाँ पर आकर उम्मत को दीन से मुतनफ़िर कर रहा है, रसूलुल्लाह के कौल की अपनी तरफ से तावील कर रहा है। ये चीज है। तो हकीकत जो है ना, हकीकत कुछ और कह रहे हैं। अब जरा देखें इस हदीस से, अब हदीस की जो असल तशरीह है, अब देखें उस हदीस की भी तायद होती है, मंजार कब्री वजबत लहू शफाअती, क्योंकि मेरी बारगाह में आओगे, मेरी कब्र की ज़ियारत करोगे, तभी तो मेरी शफाअत तुम्हारे लिए वाजिब होगी। दूसरी मर्तबा क्या फरमाया कि जिसे हो सके मदीना में इंतकाल करे, मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो मदीना में इंतकाल रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो सकता है। फिर फरमाया कि जो हज के लिए आए और मेरी कब्र की ज़ियारत करके उसने मुझ पे ज़्यादती की, मेरे साथ बेवफाई की, जरा सोचें आप। तो अब तायद इस तरह की होती है ना। और ये हदीस भी अपनी जगह मुसल्लम, ये हदीस भी अपनी जगह मुसल्लम। अब कोई अपनी तरफ से हदीस का गलत मफहूम बयान करे तो फिर उसके लिए तो वो हदीस मुतवातिर, जो तवातुर के हद तक पहुंची हुई है, वही सादिका है कि जिसने अल्लाह के रसूल पर जो है जानबूझकर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना, रसूलुल्लाह फरमा रहा है। तो हदीस से मुतवातिर बताइए, सोचिए। तो ऐसा मामला है। और दूसरी बात, एक चीज और लोग कहते हैं कि यहाँ पर ईद का माना ईदगाह नहीं बल्कि मेला है, ठेला है, उर्स वगैरह है। मैं चैलेंज करता हूं, सबको चैलेंज करता हूं, जिसके भी मुंह से ये बात निकलती है कि दुनिया के किसी भी लोग से अगर उसने ये साबित कर दिया कि ईद का माना उर्स, मेला, ठेला ये सब होता है, तो उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस स्टूडियो से 50,000 का इनाम देंगे। सुभान अल्लाह। देखिए ईद जो है ना, असल में ये इसका माध्य औद है, ठीक है ना, लौटने के माना में। ईद को ईद क्यों नहीं, किस लिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं ये कि साल में लौट कर दोबारा आती है। तो ईद का माना इस तरीके से ये है। अब किसी भी लोगों से अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि ईद का माना मेला ठेला होता है, उर्स वगैरह होता है, तो उसको इंशाअल्लाह हम 50,000 रुपए का इनाम आके हमसे लेकर चला जाए। और चैलेंज में कोई क़यामत तक इस बात को साबित नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए गलत जो है ना, कुरान फरमा रहा है जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक हमेशा वाज़ेह रहता है। तुम गलत तरीके से अवाम को तो गुमराह कर सकते हो ना, हमारे सामने बैठ कर कभी तुम इस तरीके से बयान नहीं कर सकते। अगर किसी में है मजाल तो फिर आए उसको साबित करें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आपने तो हक वाज़े कर दिया। उलमाए सू कहां से कहां तक लेके जा रहे थे। हाँ, बात ऐसी असल में यही चीज है ना कि हक क्या चीज होती है और बातिल क्या चीज होता है ना। लोग तो सादा लोग हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है ना। अक्सर लोग देखिए कहाँ लोग दीन से कितने दूर हैं, ये चीज है। तो और ना अहलों को जो दीन थोड़ा कम जानते हैं ना, उनको राह हक से मुतनफ़िर करना ये बहुत आसान होता है। और वो हमारे वाले सब कहा करते थे कि बेटा आज के जमाने में ना शैतान जो होता है ना, वो शैतान नहीं आता, वो इंसान की शक्ल में शैतान बन के आता है। भाई मामला से कुछ है, ये उलमा की शक्ल में। इसलिए मैंने कहा ना ये उलमाए सू है, बद से बदतर लोग हैं ये, इस तरीके से जो उम्मत को मुतनफ़िर कर रहे हैं। हकीकत के साथ सोच, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, ये बयान क्या कर रहे हैं, मतलब कहां से कहां मामला पहुंच गया। हाँ तो हजरत आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर। जी हजरत, इस हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहन खुल गया। जी बेशक, जहन का जो बंद खुलिया था वो खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मैं अपनी बात करता हूँ कि इस हदीस से जहाँ तक
वहाबियों ने वहाबियों ने। एक आतंक मचाया हुआ था। हाँ बिल्कुल। इससे ये तासुरात देना चाहते थे कि ये उर्स पे जो है मज़ारात औलिया कराम पर जो जो है मज़ारात औलिया कराम पर मेला लगता है जी। और इस तरीके से रश होता है, जी। तो तासुरात ये देना चाहते थे जी। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है जी। कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, हाँ। कि इससे मतलब ये है कि मेरी कब्र पर मेला न लगाओ। जी। जिस तरीके से मतलब ये उनका कहना कि औलिया कराम के मज़ारात पर जो उर्स लग रहे हैं जी। जी। वो खत्म कर दिया जाए। अच्छा। मतलब इनका मिशन ही यही है कि औलिया कराम से जो है मुसलमानों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये औलिया कराम से लगे रहेंगे, हाँ, इनकी निस्बत तो रहेगी, इनकी निस्बत रहेगी, तो इनके दिलों में जो है हुब्बे रसूल और औलिया कराम का जब तक इश्क मौजज़न रहेगा, हाँ, तो इनका बाल भी बिका नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, मतलब गुफ्तगू थोड़ा सा तवील ना हो, जी। इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बस एक इशारा देता चलूं जी। कि ये लोग जो इस हदीस से उर्स पे इस्तेदलाल करते हैं ना, तो उर्स मनाना कुरान से साबित है। जी। कुरान में असहाबे कहफ के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, बेशक। कुरान की तफासिर में चीजें हैं कि असहाबे कहफ का बाकायदा उर्स लगा था। इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बस एक इशारा दे दिया कि उर्स लगाना ना ये कुरान से साबित है, मैं इसको साबित कर दूंगा। जी। तो कहने का मतलब ये है हजरत कि ये उलमाए सू यानी उलमाए सू ऐसे हैं कि मतलब हक से गुमराह करना इनका काम हो गया। औलादे इबलीस में इबलीसियत तो भरी होगी ना। जी जी, ये हकीकत चीज है, क्योंकि इबलीस तो हर जगह नहीं पहुंच सकता। हाँ, नहीं पहुंच सकता। इबलीस को जो है जाहिर से बहुत काम रहते होंगे, थक गया होगा कब से, तब बाल बच्चे काम करते हैं वही जी जी। तो उसने अपनी इन रूहानी औलादों को लगा कि सुन्नियों को जो है राह रास्ते भटका दो। तो अच्छा, उसने कहा भी था अल्लाह से ना कि जब तक दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। तो बेचारा शायद थक गया हो, इसलिए अपनी औलाद को लगा दिया उसने काम पर। जी जी। तो असल मकसद जो हदीस का हजरत है, ये अब समझ में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मुरादी और मकसूदी माना ये था जो आपने बयान किया हजरत, कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। इसका मतलब ये कि साल में सिर्फ 2 मरतबा ना आओ, मेरी कब्र पे हर बार जब भी आओ, तेरी जब भी होगी तो वही ईद होगी, जब मौका मिले तब चले आओ, मतलब ये माना है ये। और दूसरी बात की सुई अदब से महफूज फरमाया लोगों को और अदब सिखाया कि इस तरीके से आओ, लहो लाइब ना करो, मेरी बारगाह में तो आवाज ही बुलंद नहीं की जाती ना। तो ये चीज बता क्या रहे हैं ये लोग, जरा सोचें आप। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी वजाहत फरमाई है। इंशाअल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं किसी एक यूनिक मौजू के साथ। तब तक के लिए जो है हम आपसे रुखसती चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe Al Huda Studio channel and press THA bell icon to get our video first.